Hello everyone. So it's been long since we uploaded any DILR set on our YouTube channel and we are sorry for that कि हम लोग बहुत दिनों से upload नहीं कर पाए, regular नहीं रह पाए. But as we have already scheduled so many RCs, we are going to do that with DILR sets as well, so that from tomorrow onwards you get them every day. So the weekly planner or the day which we have planned for you guys will look something like this. तो हर दिन 7 बजे हमारे फेसबुक ग्रुप पे you'll get an article and newspaper. Then at 10 a.m. you will get an RC set on our YouTube page or YouTube channel. You can download the PDF of this RC from our Facebook group. तो 10 बजे YouTube पे और Facebook पे पैरेलली साइमल्टेनियसली 2 पोस्ट आएंगे. YouTube पे इस RC का पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा और Facebook ग्रुप पे इस RC का PDF आएगा. So you guys can go and download the PDF from Facebook group, solve that RC, go through the explanation video on the YouTube page और YouTube channel. उस RC के PDF में ही हमने YouTube का वीडियो का लिंक एम्बेड कर रखा है. So you can just directly go from that PDF to the video. At 12 noon you will get DILR set. तो 2 घंटे बाद you will get a DILR set. Again at 2 p.m. you will get another DILR set. Same चीज़ इन लोग DILR सेट के साथ भी होगी जैसा RC सेट के साथ है. So at 12 and 2 p.m. a post will be published on our Facebook group. You can download the PDF from the Facebook group, solve the set, then come and check the solution explanation on the YouTube channel. At 4 p.m. you will also get another RC. 6 p.m. we have a vocabulary quiz. Every day this has been happening for I think last 1 month or so. So we have already done around 30 quizzes of vocabulary. This happens on our Telegram group. तो 6 बजे ये क्विज स्टार्ट होता है. इट्स लाइक 15 मिनट to 20 मिनट क्विज एंड इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं. सो दिस क्विज हैपन्स ऑन टेलीग्राम ग्रुप. देन ऑन 8:30 p.m. on our Instagram और Facebook page group we do have quizzes. तो ये क्विज रेगुलर नहीं होते हैं बट वीक में 3 से 4 बार तो हम लोग इस तरीके के क्विज कराते हैं. From 8 to 10, so something which these are the open things available at least now for all the people. From 8 to 10 in the morning we have live classes. Those are for our students who have enrolled with our paid batches. तो इनके लिए 8 से 10 के बीच में रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं और वी हैव आवर पोर्टल जिसमें आप सेक्शनल टेस्ट्स और डिफरेंट टाइप के टॉपिक टेस्ट्स इस तरीके के क्वेश्चंस लगा सकते हैं. सो दिस इज़ द होल आइडिया अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू प्लान योर प्रिपरेशन. So let's not waste time and start with this DILR set. So this set says on a particular day 3 persons Pawan, Kiran and Lohit visited their friend. Each person came in a different vehicle among car, bus and bike. Further, each person bought a different gift among a bouquet, a photo frame and a dinner set. तो 3 तरीके के गिफ्ट आए हैं, bouquet, photo frame and a dinner set. It is known that one of the 3 persons is a liar who always lies. Another person is an alternator who always alternates between telling the truth and a lie in any order. And the third person speaks such that exactly 1 out of every 3 consecutive statements that he makes is a lie. तो 3 तरीके के लोग हैं हमारे पास. Always lies. Then we have alternator. Alternates between truth and lie. Then we have let's say call this person as truth teller who speaks 1 lie and 2 truths. So these are the 3 kind of persons. So पवन, किरण और लोहित इनमें से एक लायर होगा, एक ऑल्टरनेटर होगा और एक ट्रुथ टेलर होगा. तो बाइनरी लॉजिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं. सो व्हाट वी डू, वी एज्यूम. सो वी विल एज्यूम वेदर पवन इज अ लायर और किरण इज अ लायर और लोहित इज अ लायर. यही 3 केसेस हो सकते हैं. तो हम ये तीनों केसेस एज्यूम करके चलेंगे. सो वी हैव पवन, देन वी हैव किरण, देन वी हैव लोहित. तो इन लोगों ने
ट्रांसपोर्ट जो भी यूज़ किया है और जो गिफ्ट यूज़ किया है, तो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। लेट्स स्टार्ट बाय अज्यूमिंग पवन इज़ अ लायर। तो अगर ये लायर है तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स झूठ बोलेगा। तो अगर ये कह रहा है कि ये बस से आया है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई केम बाय बस, सो ही डिडंट कम बाय बस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये लायर है। सो ही डिडंट कम बाय बस। लोहित डिड नॉट ब्रिंग द फोटो फ्रेम। सो टू निगेट दिस स्टेटमेंट वी कैन से दैट लोहित डिड ब्रॉट द फोटो फ्रेम। सो लोहित के पास यहाँ पे हम लोग फोटो फ्रेम लिख देते हैं। किरण इज एन अल्टरनेटर। अगर ये स्टेटमेंट झूठ है तो किरण अल्टरनेटर नहीं हो सकती है, लायर है नहीं, तो किरण के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ टेलर बचेगा एंड दिस गाय विल बी एन अल्टरनेटर। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं किरण को एज अ ट्रुथ। तो ट्रुथ वाले के पास ये है कि उसको एक लाई बोलना है और दो सच, एक झूठ और दो सच। किरण ने कहा पवन डिड नॉट कम बाय बाइक। तो अब ये हमें नहीं पता है कि ये सच है या झूठ है। आई ब्रॉट द बुके, इसका भी हमें नहीं पता है। लोहित इज अ लायर, लोहित इज नॉट अ लायर। तो इसका मतलब किरण का थर्ड स्टेटमेंट लाई है। सो बाकी के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए बिकॉज किरण इज अ ट्रुथ टेलर। तो पहला स्टेटमेंट पवन डिड नॉट कम बाय बाइक हैज टू बी ट्रू। सो पवन बाइक से नहीं आया है और बस से भी नहीं आया है क्योंकि पवन इज अ लायर। तो बस से भी नहीं आया है, बाइक से भी नहीं आया है, तो किससे आना चाहिए? कार से आना चाहिए। दूसरा आई ब्रॉट द बुके। सो ये अगर सही है तो यहाँ पे बुके हो गया और यहाँ पे क्या बचता है? डिनर सेट। तो ये डिनर सेट हो गया। अब लोहित के पास चले जाते हैं। लोहित इज एन अल्टरनेटर। तो लोहित ने पहला स्टेटमेंट बोला पवन स्पोक एग्जैक्टली वन लाई, बट वी अज्यूम दैट पवन इज अ लायर। तो इसका मतलब है कि लोहित का पहला स्टेटमेंट जो है वो झूठ है, तो दूसरा वाला जो है वो सच होना चाहिए। दैट मीन्स लोहित केम बाय बाइक। सो लोहित बाइक से आया है। दैट विल मेक किरण कम बाय बस। सो किरण केम बाय बस। तीसरा स्टेटमेंट फिर फॉल्स होना चाहिए। सो दिस इज लाई, दिस इज ट्रूथ, दिस हैज टू बी लाई। किरण डिड नॉट ब्रिंग द डिनर सेट। किरण डिड नॉट ब्रिंग द डिनर सेट बट दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका मतलब जो हमारा इनिशियल एजम्पशन था कि पवन लायर है वो गलत है, बिकॉज अगर वो सही होता तो तीनों चीज़ें सही होनी चाहिए थी। क्योंकि तीनों चीज़ें हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो हमने जो इनिशियल एजम्पशन लिया था वो गलत हो गया। सो नाउ वी हैव टू टेक अनदर एजम्पशन। तो हमने ये वाला केस हटा दिया। So now we can say that Kiran is a liar. Let's take Kiran as a liar. तो पहला स्टेटमेंट है पवन डिड नॉट कम बाय बाइक। तो इसको अगर झूठ करना है तो पवन हैज टू कम बाय बाइक। तो यहाँ पे बाइक कर दिया। आई ब्रॉट द बुके। सो इसको झूठ करना है तो किरण डिडंट ब्रिंग द बुके। लोहित इज अ लायर। तो इसको अगर झूठ करना है तो लोहित इज नॉट अ लायर। सो लोहित कैन बी ऑल्टरनेटर और अ ट्रुथ टेलर। तो अभी हमें कुछ पता नहीं है। पवन के पास जाते हैं। पवन ने पहला स्टेटमेंट बोला आई केम बाय बस। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज पवन केम बाय बाइक। सो ये लाई है। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम पवन का देखें तो उसने कहा है किरण इज एन ऑल्टरनेटर विच अगेन इज अ लाई बिकॉज किरण इज अ लायर। सो ये भी झूठ हो गया। नाउ आउट ऑफ दीज थ्री कैटेगरी ऑफ पीपल वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस एल। T cannot be put in पवन्स प्लेस बिकॉज पवन ने दो झूठ बोल दिए हैं तो उसको एक ही झूठ बोलना अलाउ था। सो T cannot come here. So the only option is A. That means this becomes T. That also gives us that this is a true statement. So Lohit did not bring the photo frame. This is a true statement. So लोहित के अलावा कोई फोटो फ्रेम लेके आया होगा। अब हम एक बार लोहित के पास जाते हैं। लोहित ने पहला स्टेटमेंट बोला। सो लोहित इज अ ट्रू टेलर जिसके दो स्टेटमेंट सही होंगे और एक स्टेटमेंट लाई होगा। पवन स्पोक एग्जैक्टली वन लाई। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज पवन ने दो झूठ बोले हैं। सो दिस बिकेम्स लाई स्टेटमेंट। दीज टू हैव टू बी ट्रू स्टेटमेंट्स। आई केम बाय बाइक, ये भी फॉल्स हो गया बिकॉज बाइक पहले से पवन के पास जा चुकी है। इसका मतलब जो हमारा इनिशियल एजम्पशन था दैट किरण इज अ लायर,
ये भी सही नहीं है, तो हम इसको भी कैंसिल करेंगे एंड वी विल गो टू द लास्ट कैटेगरी, दैट मीन्स लोहित इज अ लायर। तो लोहित को लायर कर देते हैं। तो अब क्या होगा, लोहित इज अ लायर। पवन स्पोक एग्जैक्टली वन लाई, तो इसको अगर हमें गलत करना है तो इसका मतलब है पवन ने एग्जैक्टली वन लाई नहीं बोला, यानी कि एक से ज्यादा या एक से कम एक नहीं हो सकता है। ना आउट ऑफ 3 कैटेगरी ऑफ पीपल दैट वी हैव, सो ट्रूथ टेलर ने एक ही लाई बोला है, यानी कि एक ही झूठ बोला है, तो पवन कैनॉट बी टी। सो पवन के पास ऑप्शन क्या बचता है, ए, एंड दिस गाय बिकम्स टी। दूसरा स्टेटमेंट, आई केम बाय बाइक, ये भी फॉल्स होना है, सो लोहित डिडंट कम बाय बाइक। किरण डिड नॉट ब्रिंग द डिनर सेट, इसको अगर लाई बनाना है तो किरण डिनर सेट लेके आई है। अब किरण पे जाते हैं, तो किरण ने कहा आई ब्रॉट द बुके, ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, तो ये दोनों ट्रू होने चाहिए बिकॉज किरण इज अ ट्रूथ टेलर, जिसने एक झूठ और 2 सच बोले हैं। तो पहला, पवन डिड नॉट कम बाय बाइक, तो पवन बाइक से नहीं आया है। लोहित बाइक से नहीं आया है बिकॉज इसको हमको झूठ करना था, तो बाइक किसके पास बची, किरण के पास बची। ठीक है। थर्ड वन, लोहित इज अ लायर, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पे भी हमने माना है और यहाँ पे भी है, तो अभी तक सब कुछ सही जा रहा है। अब हम पवन के पास जाते हैं। पवन इज एन ऑल्टरनेटर, आई केम बाय बस, तो इसमें हम क्या करेंगे, दिस हैज टू बी लाई, दिस हैज टू बी ट्रू, दिस हैज टू बी लाई, बिकॉज पवन को एक झूठ नहीं बोलना है। अगर हम उसको उल्टा कर दें, अगर हम इसको ट्रू लाई ट्रू कर दें तो एक ही झूठ हो जाएगा, सो दिस कांट बी ट्रू, सो LTL होना चाहिए। आई केम बाय बस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो ही डिडंट कम बाय बस, तो बस यहाँ पे चली गई और कार यहाँ पे आ गई। लोहित डिड नॉट ब्रिंग द फोटो फ्रेम, लोहित फोटो फ्रेम लेके नहीं आया है। डिनर सेट नहीं लाया है बिकॉज डिनर सेट हो चुका है, सो लोहित बॉट बुके, और यहाँ पे आ गया फोटो फ्रेम। किरण इज एन ऑल्टरनेटर, दिस इज अ लाई बिकॉज किरण इज अ ट्रूथ टेलर, और टी फ्रॉम आवर स्टेटमेंट। तो ये एजम्पशन जो हमने लिया लोहित को लायर रखने वाला, ये सबको फुलफिल कर रहा है, सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ फिलिंग दिस ग्रिड। अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे और देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग आंसर्स क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द लायर? सो फ्रॉम आवर स्टेटमेंट वी कैन सी, फ्रॉम आवर सेट वी कैन सी दैट लोहित इज द वन, सो द आंसर इज सी, लोहित। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच व्हीकल डिड लोहित कम? सो लोहित केम बाय बस, so we can go for option number A. Who brought the dinner set? So we have Kiran who brought the dinner set, so we can go with option number B. Last statement, what did the alternator bring? तो alternator क्या लेके आया? Photo frame, so last वाले का आंसर क्या हो जाएगा? Option number A. So that completes the set guys. I hope you have enjoyed the explanation. और हमारे पुराने भी सेट्स को आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, आरसी के सेट्स को बहुत अप्रिशिएट किया है। सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड स्प्रेड इट टू एज मेनी फ्रेंड्स एज यू हैव। जो लोग भी एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सबको शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, अपने जूनियर्स को शेयर करो। जो लोग अभी नहीं भी शुरू कर रहे हैं, हु आर इन फर्स्ट ईयर, हु आर इन सेकेंड ईयर, शेयर विद देम सो दैट दे कैन स्टार्ट गोइंग थ्रू देम, एंड जब सही टाइम आएगा तो उनके पास एक पूरा रिपोजिटरी होगा। दैट्स इट गाइज, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय योर डे।